हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक. आवर फेवरेट टॉपिक स्ट्रेट लाइन इन 2D. बेटा स्ट्रेट लाइन 2D में भी होती है और 3D में भी होती है. 2D मीन्स 2 डायमेंशन. तो 11th क्लास में हमारे पास स्ट्रेट लाइन 2D में है और यही स्ट्रेट लाइन हमारे को डिस्कस करनी है इन 3D इन 12th क्लास. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस सम कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चंस फॉर टॉपिक स्ट्रेट लाइन इन 2D. So let us start our class. Yes beta, in this question find the angle between two lines like 2x plus 3y plus 7 is equal to 0 and 3x minus 2y plus 5 is equal to 0. बेटा ये टॉपिक हमारे पास एक्स्ट्रा टॉपिक है एनसीईआरटी में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और बेटा ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में 3 मार्क्स वेटेज के पुटअप हो जाते हैं. ओके, सो for the finding of angle between these lines, first of all we should find the slope of these lines. Like solution, given lines are 2x plus 3y plus 7 is equal to 0 and 3x minus 2y plus 5 is equal to 0. Then slope of first line is m1 is equal to, as we know, slope of line is equal to minus coefficient of x upon coefficient of y. So here coefficient of x is 2 and coefficient of x is equal to 3. Similarly, and slope of second line is m2 is equal to minus coefficient of x means 3 upon coefficient of y means minus 2. Minus 2 minus cancel out. Now if angle between lines is theta, then tan theta is equal to, the formula is plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. Now if we put the value of m1 and m2 from here and here, then we get plus minus m1 means minus 2 by 2 minus m2 is 3 by 2 and in denominator 1 plus m1 is minus 2 by 3 into 3 by 2. Is that clear? बेटा जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे then plus minus in numerator we can take LCM like 6 minus 4 minus 9 and in denominator 1 minus 2 to 2 cancel out, 3 to 3 cancel out, means it is 1. Now tan theta is equal to, it is minus 13 by 6 upon 0. तो बेटा अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, इट मीन्स दिस इज अनडिफाइंड नंबर और इनफाइनाइट वैल्यू. सो tan theta is equal to infinite and as we know at theta is equal to pi by 2 or 90
value is infinite. So we can say angle between these lines is pi by 2 or 90. Means these lines are perpendicular to each other. Is that clear बेटा? यही क्वेश्चन हमारे पास अनदर कंडीशन में भी आ सकता है. इसी टॉपिक पे बेस्ड अनदर पैटर्न पे क्वेश्चन ले लेते हैं. अब देखो क्वेश्चन ये सेम टाइप का है, या कंडीशन चेंज हो गई है, वर्डिंग चेंज हो गई है. लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ k if lines 2x plus 3y plus 7 is equal to 0 and 2x plus ky plus 5 is equal to 0 are parallel to each other and perpendicular to each other. इस क्वेश्चन में हमारे को दो कंडीशन के लिए k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. पहले हम लोग फर्स्ट केस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लाइक सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज m1 is equal to minus 2 by 3 and slope of second line is m2 is equal to this one minus 2 upon k. Is that clear beta? Now first condition, if given lines are parallel to each other, then as we know m1 is equal to m2. बेटा जब कभी भी टू लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं. ओके, सो वी आर टेकिंग m1 is equal to m2. ये कंडीशन अपने को लर्न रखनी है. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m1 and m2, देन वी गेट minus 2 by 3 is equal to minus 2 by k. So here k is equal to 3. Is that clear beta? Now in second case, if given lines are perpendicular to each other, then m1 into m2 is equal to minus 1. ये कंडीशन हमारे को लर्न रखनी है परपेंडिकुलर के लिए, ये कंडीशन हमारे को लर्न रखनी है पैरेलल के लिए. ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m1 and m2 फ्रॉम हियर एंड हियर, देन वी गेट minus 2 by 3 into minus 2 by k is equal to minus 1. So it is 4 by 3k is equal to minus 1. तो यहां से k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k is equal to minus 4 by 3. इज दैट क्लियर बेटा? ऐसे ही स्ट्रेट लाइन की कुछ अदर कंडीशंस भी हैं, उनको भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं. यस बेटा, आवर नेक्स्ट कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through the intersection point of given lines 2x plus 3y is equal to 5 and 3x minus 2y is equal to 1 and which is perpendicular to a given line like 3x plus 5y is equal to 7. बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. इसको अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि हमारे पास सपोज दैट ये टू लाइंस हैं जिनका हमारे को इंटरसेक्शन पॉइंट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, सपोज दैट दिस वन,
और ये जो लाइन हमारे पास है इट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन 3x plus 5y is equal to 7। तो यहां हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड टू लाइंस गिवन है, इजी क्वेश्चन है। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन इजीली हमारे पास सॉल्व हो सकता है। ओके, सो आवर सॉल्यूशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ दिस एंड दिस लाइन। सो intersection point of given lines 2x plus 3y is equal to 5 and 3x minus 2y is equal to 1। तो बेटा इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से, जैसा कि हमने 10th क्लास में 9th क्लास में सोल्व किया होगा, सॉल्व कर सकते हैं और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन सब फर्स्ट और सेकंड सपोज कर लेना। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x is equal to 1 and y is equal to 1 we will get, so point is 1,1। तो बेटा 1,1 से पास कर दिया लाइन और हमारे को बोल दिया इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब हम लोग सेकेंड केस यूज लेंगे। नाउ स्लोप ऑफ गिवन लाइन 3x plus 5y is equal to 7 is m1 is equal to minus coefficient of x upon coefficient of y minus 3/5। okay, and slope of perpendicular line, as we know slope of perpendicular line m2 is equal to minus 1 upon m1। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे और साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास m2 की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। ओके, सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, सिंपल सा फॉर्मूला है y minus y1 is equal to m2 x minus x1। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे देन वी विल गेट आवर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इज दैट क्लियर? लाइक y minus y1 means 1 and m2 is 5/3 x minus 1। Can we calculate or solve this line, this condition? Like 3y minus 3 is equal to 5x minus 5 by the transposition 5x minus 3y is equal to 2। That is our equation of required line। ओके बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास पेपर में, एग्जाम्स में 3 मार्क्स 4 मार्क्स वेटेज के पुटअप हो जाते हैं। सो यू शुड ट्राई, यू शुड प्रैक्टिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फिर भी कहीं अगर आपको कोई डाउट आता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स, मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर। ओके देन, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।